ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠವಾದ ತುಳಜಾಪುರದ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಮಾತೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಮಂದಿರ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮಂದಿರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಾತೆ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೂರ ದೂರದ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನೋಕಾಮನೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ 2024 ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನಿತರರು ಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಪಂಡರನಾಥ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ಮಂದಿರ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಬೀದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗುಜರಾತ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಘಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾತೆಯ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಸೀಮಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 5 ದಿವಸದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಜಗಿರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನ ದೇವಿಯ ಮಾತಾ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ 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 ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ರಾಜು ಮುರಾರಿ ದಹಿಮಾ ಅವರಿಂದ ದೇವಿ ಮಾತಾ ಜಾಗರಣ ದರ್ಬಾರ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಪಂಡರನಾಥ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಾಮನ್ ಜಿ ಚೌಹಾಣ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿಶನ್ ಜಿ ಚೌಹಾಣ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶಿವಾಜಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಖಜಾಂಚಿ ರಂಗನಾಥ್ ಚೌಹಾಣ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಷ್ಣು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೂಲ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಾತಾ ಭವಾನಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಥರ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆನಕಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು नवरात्र उत्सव मारतारा। थोड़ा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए। ये बहुत पुरातन मंदिर है, श्री माता महिषासुर मर्दिनी का ऐतिहासिक स्थल है। ये एक जागृत स्थान है। ये जैसे तुलजा माता का शक्तिपीठ है, ये उनकी बहन, छोटी बहन श्री माता महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। तो ये भी एक जागृत स्थान है। काफ़ी यात्रीगण महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, इवन एमपी मध्य प्रदेश से, गुजरात से, कई भागों से यात्रीगण यहाँ मंदिर के लिए आते हैं। बहुत ही शक्ति का स्थान है, बहुत बड़ा जागृत स्थान है। हज़ारों लोग संख्या में माता के दर्शन के लिए आते हैं। और ये नवरात्र का उत्सव 3 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 3 अक्टूबर दिन यहाँ पे मंदिर के सामने माता के प्रांगण में घट स्थापना हो गई है। उसके बाद प्रतिदिन यहाँ पे कार्यक्रम होते जाते हैं माता के दरबार में, और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। हज़ारों लोग यहाँ पे प्रसाद भी लेते हैं, सेवन करते हैं, प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं।
आने वाले 9 तारीख के दिन 11 ना भैया आने वाले 17 तारीख के दिन शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में तेलंगाना हैदराबाद के बहुत बड़े सिंगर राजू मुरारी दाइमा का कार्यक्रम का आयोजन किया है। हज़ारों भक्तगण आते हैं। मैं भक्तों से विनती करता हूँ उस दिन आके माता का दर्शन करें और प्रसाद का लाभ लें और कार्यक्रम का भी सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसका भी लाभ उठाएं। कर्नाटक से मैसूर से भी लोग भक्तगण यहाँ आते हैं। कर्नाटक का जो मैसूर है वहाँ से लोग आते हैं, बेंगलुरु से आते हैं, ये गुलबर्गा बಳ್ಳारी जितने मतलब हमारे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है सभी जगह से यात्रीगण आते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से लेके इवन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लेके लोग मंदिर यहाँ लोग यात्रीगण यहाँ आते हैं। काफ़ी दूर दूर से यात्रीगण आते हैं। बहुत ही जागृत स्थान है। माता सबको आशीर्वाद करती है। किसी कुछ मन्नत होती है मांगने से पूरी करती है माता, तो भाग बांध के माता के चरण में रखते हैं कि माता हमारा काम होने बोल के अपने घर में भाग बांध के रखते हैं। तो उनका कार्य पूरा होने के बाद जो भी अपना संकल्प लेते हैं वो संकल्प छोड़ने के लिए माता के दरबार में आते हैं। तो मैं सभी भक्तगणों को सूचित करता हूँ कि आने वाले दिन 17 तारीख को माता की पालकी बड़े पैमाने पे पालकी निकलती है। माता 13वें दिन शिलंगन जो होता है वो माता करके फिर निद्रा में जाती है। 5 दिन माता का मंदिर बंद रहता है। फिर 17 तारीख को माता का मंदिर सवेरे 4 बजे से माता के मंदिर की पूजा अर्चना पंचामृत स्नान वो चालू होता है। तो भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ वो आए और इस माता के दर्शन का लाभ ले और प्रसाद ले। मेरा नाम अशोक चौहान, अशोक बाबूराव चौहान, माता महिषासुर मर्दिनी ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। ग्राम बेनकनहल्ली से हूँ। सभी भक्तजनों को कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना सभी भक्तजनों को मैं बालाजी चौहान, महिषासुर मर्दिनी यल्लम्मा भवानी बेनकनहल्ली ग्राम में ये वास्तविक महिषासुर मर्दिनी का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये मंदिर 1303 में रावल रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक कूटनीति से युद्ध करके रावल रतन सिंह को हराया। उसके बाद उनकी पत्नी पद्मावती अपना जोर रखी, क्योंकि पद्मावती ने ये सोच के अपना जोर रखी सती होके गई। क्यों बोले तो जो मेरे राजा चले जाने के बाद मैं अगर ऐसा मर के अगर मेरा बॉडी भी अगर ये ज़मीन के ऊपर रहा तो अलाउद्दीन खिलजी मेरा बलात्कार करेगा, ये मरे सो बॉडी को भी बोल के वो सब सोच के अपना जोर रची। और वो सती हो के उनके साथ 16,000 दासियाँ उनके साथ जोर में भाग लिए और सती हो के पति के साथ चले गए। ये एक हमारा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का एक ये है इतिहास है। और उस टाइम 1400 ईस्वी सन में 1300 से 1400 ईस्वी सन में क्या अलाउद्दीन खिलजी जो राजपूत थे उस राजपूतों को आप लोग यहाँ रहना है तो मुस्लिम बन के रहना, नहीं तो आपको ख़त्म किया जाएगा, नहीं तो छोड़ के चले जाना हमारा राजस्थान बोल के बोलने के बाद हमारे लोग 46 गांव में 46 गांव में बट गए। कोई एक गांव में 1 2 3 4 ऐसा हो के महाराष्ट्र में कुछ गए, थोड़ा तेलंगाना में गए, आंध्रा में गए और ऐसा फैल गए हमारे लोग। हमारे गांव में क्या है बोले तो मुकुंद सिंह और आनंद सिंह 1400 ईस्वी सन में आए। ये बेनकनहल्ली एक वन था, झाड़ी था, जंगल था, बहुत बड़ा घना जंगल था। इस घने जंगल में वो दोनों भाई एक झाड़ के नीचे सो गए थे। सोने के बाद राजस्थान में हमारी माता आशापुरी माता कुलदेवता है, वो माता उनको दृष्टांत दी। दृष्टांत देने के बाद आप लोग आके ऐसा ही सो गए, आप
जो सो गए उस जगह पर मैं उपस्थित हूँ। बोलने के बाद दोनों भाइयों को उठ के जागृत हो गए, उठ के सोचे ये क्या ऐसा एकदम ऐसा सपना गिरे जैसा हो गया। उस टाइम दोनों भाई हाथ या लकड़ी जो मिला उससे खोदने लगे। खोदे तो माता का मूर्ति स्वयंभव मूर्ति प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद एक छोटा सा एक पत्थर वो जमा करके छोटा सा एक मंदिर बना के पूजा स्टार्ट हो गया। उसी टाइम से जो थोड़ा ये होते गया। उसके बाद राजा निज़ाम यहाँ माता का दर्शन को आके दर्शन लेके हमारे पुजारियों को 5 एकड़ ज़मीन दान इनाम में दिए थे। और वो ये 5 एकड़ ज़मीन में ये माता महिषासुरमर्दिनी का देवस्थान हम निर्माण करे सो है। और ये कम से कम नहीं बोले तो भी 800 850 साल का ये इतिहास है। हम लोग राजस्थान के हैं, हम लोग सभी राजपूत चौहान है। और जो आशापुरी माता के पास पुजारी चौहान है, यहाँ पर भी महिषासुरमर्दिनी माता के दरबार में भी चौहानी पुजारी है, उसको छोड़ के कोई पुजारी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये साल को नवरात्र में गए 3 तारीख को माता का घट स्थापना हो गया। हज़ारों लोग आने को शुरू हो गए। महाप्रसाद का दासोल चालू है। हज़ारों लोग आके माता का दर्शन करके दासोल का लाभ उठा रहे हैं। और हज़ारों लोगों को माता की कृपा हुए सो है। किसके आँख गए आँख आए सो है, किसके बच्चे नहीं हो गए बच्चे हो गए सो है। कोई आदमी बहुत गरीब काम करने को गया माता का दर्शन करके, जो मुंबई पूना हैदराबाद वैसे वो करोड़पति हो के यहाँ पर आके माता के पास अपने माता के चरणों में सर झुका के बोल के गए सो है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों, यहाँ पर जो 2000 से 2000 से हम ये माता का सेवा स्टार्ट करे सो है। 2006 में ये मंदिर हो गए सो है। जब से हम माता के सेवा में लगे सो है, हम उससे पहले हमारे पूर्वज किशनराव चौहान जी इस मंदिर के अध्यक्ष थे। पंडरीनाथ चौहान जी मेरे पिताजी उपाध्यक्ष थे। और मेरे नरसिंह राव चौहान जी और राव साहब चौहान जी, वामन राव चौहान जी, ऐसे पूरे हमारे पूर्वजों ने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन से हमें अब ये मंदिर कंप्लीट हुए सो है। उसके बाजू में रेणुका माता का मंदिर भी कंप्लीट होने को आए सो है। और उसके पीछे सरस्वती माता, पोचम्मा माता और रेणुका माता और मातंगी माता, ये सब माताओं का मंदिर हम बनाए सो है। ये सब कोई भी कौन सा गवर्नमेंट से यहाँ फंड आए सो नहीं है। जो भक्तजन ईमानदारी से यहाँ पर गले में डालते हैं और अपना दिल से अपने सच्चाई मन से ये काउंटर के ऊपर रसीद पाड़ के जो काउंटर के ऊपर पैसा जमा करते हैं, वही पैसे से यहाँ पर सब डेवलपमेंट हो रहा है। और बड़ा सा अब हम फंक्शन हॉल बनाए सो है। कम से कम 5000 लोगों आने के बाद भी वो फंक्शन ऐसा एक बड़ा फंक्शन बनाए सो है, फंक्शन हॉल बनाए सो है। आगे उगाद से वो फंक्शन हॉल का ओपनिंग हो जाएगा। और सभी भक्त जनों को हम कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों के, बेटियों के, भाइयों के, किसका भी अगर शादी करना है तो माता के दरबार में आके अपने बच्चों का शादी कराए और इधर माता का आशीर्वाद लेके अपने बच्चों को वर मांगिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बनकनली ग्राम एक बहुत ऐतिहासिक ग्राम है। बहुत से गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस मंदिर में जात पात कुछ भी नहीं चलता है। कितने की लाखों लोग, मुस्लिम के लोग आके दर्शन करते हैं, क्रिश्चियन लोग दर्शन करते हैं, एससी लोग दर्शन करते हैं, दलित लोग आते हैं। हर समाज का आदमी आके माता के सामने सर झुका के अपने को आशीर्वाद मांगता है। और सभी लोगों को माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिले सो है और मिलते रहेगा। ये बहुत सत्य कहानी है। मैं 1-2 बात कह के मेरे बात समाप्त करता हूँ। जय भवानी। मेरा नाम बालाजी पंडरीनाथ चौहान, इस ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ। नमस्ते। मंगलेश्वे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते।
सालला त्यांनी येऊन इथं स्थापना देवीची केली. आमची कुलदैवत भवानी आहे. त्याच्याकरता सर्वजण आता होत होत काम मोठं वाढून गेलं आहे. सगळं छोटा तुळजापूर झालं हे. मुकुंद सिंह और आनंद सिंह, दो भाई, उन्होंने आए. आने के बाद यहाँ पर कन्नड़ा में बना बोलते हैं जंगल को, या जंगल था, वो सब साफ करते टाइम में उनको मूर्ति मिली एक छोटी. वो अपना उनके इसमें सपनों में मैं आके बोल दी कि हम मेरा स्मरण करे शिवाय तुम्हारा कुछ भी नहीं होता बोल के वहाँ स्थापना करके उसकी पूजा करके वो सब झाड़ा फड़ा तोड़ के यहाँ पर उन्होंने मंदिर बना दिए. छोटा मंदिर था. उनका बेटा जगराम सिंह, उन्होंने क्या करा बोल तो थोड़ा मंदिर बन के ये मूर्ति जो है ना जब उन्होंने ला के बिठाई सो है. आप चलते अब 1997 को ट्रस्ट हो गया. 1997 साले ट्रस्ट हो गया. उसमें 7-8 साल अच्छा काम हो गया. उसमें गवर्नमेंट अंडर में ले लिए. 9 साल उन्होंने खा के बर्बाद कर दिए. अभी हमारे वो अग्रवाल साहब वो है, उन्होंने सब कोशिश करके सर्वे नंबर में है ये जो मंदिर सर्वे नंबर में है, वो वापस लाए. अब ट्रस्ट हो गया. अभी काम अच्छा चल रहा है. बालाजी राव, अशोक चौहान वो सब मिलके कर रहे हैं. अच्छा.